اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو داؤد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریائے دجلے کے قریب مسلمانوں کا ایک بڑا شہر ہوگا، دجلے پر ایک بڑا پل ہوگا، آخری زمانے میں چوڑے چوڑے چہرے اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے ترک حملے کریں گے اور نہر کے کنارے پڑاؤ ڈالیں گے۔ مسلمانوں کی آبادی 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ اپنا سامان بیلوں پر لاد کر شہر سے بھاگ جائے گا، دوسرا گروہ ترکوں کی پناہ میں آ کر خود کو ان کے حوالے کر دے گا۔ یہ دونوں گروہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تیسرا گروہ اپنے آل اولاد کو شہر میں رکھ کر خود آگے بڑھے گا اور ان ترک کافروں سے لڑائی لڑے گا، یہ گروہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی حرف بے حرف پوری ہوئی، چنانچہ خلیفہ معتصم باللہ عباسی کے زمانہ خلافت میں تاتاری ترکوں نے مسلمانوں کے آباد شہر بغداد پر چڑھائی کی۔ بغداد میں دریائے دجلے ہے اور اس پر ایک پل بھی اس زمانے میں تھا۔ ترکوں نے شہر کو گھیر لیا۔ مسلمانوں میں سے لوگ اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ نکلے، مگر وہ بچ نہ سکے اور ترکوں نے ان کو قتل کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ترک بادشاہ سے امان چاہی، انہی میں معتصم باللہ اور اکثر شہر کے بڑے لوگ تھے۔ انہوں نے ترکوں کی فرما برداری کا وعدہ کیا، مگر ان کو بھی ترکوں نے ہلاک کر دیا۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بہادری کے ساتھ کافروں سے جہاد کیا۔ اللہ نے اس گروہ کو شہادت عطا فرمائی۔ پہلے 2 گروہ دنیا اور آخرت میں دونوں ناکام ہوئے، کیونکہ جان بھی گئی اور آخرت میں شہادت کا درجہ بھی نہیں ملا۔ تیسری گروہ ان دنیا میں بھی بہادری کی نیک نامی پائی اور آخرت بھی شہادت سے سنور گئی۔ یہ پیش گوئی جس کتاب میں ہے یعنی ابو داؤد میں، وہ اس واقعہ سے 400 برس پہلے لکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ بہقی نے دلائل نبوت میں حضرت زید بن ارقم سے روایت کی ہے کہ زید بن ارقم بیمار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید، تم اس بیماری سے اچھے ہو جاؤ گے، لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میرے بعد زندہ رہو گے اور اندھے ہو جاؤ گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں صبر کر کے ثواب کی آرزو رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کرو گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ زید کی بیٹی انسیہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اندھے ہو گئے تھے۔ پھر بہت زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں اچھی کر دی اور پھر ان کا انتقال ہوا۔
आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी सादिक आई। जिस बीमारी में आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेद की इयादत को गए थे, उससे अच्छा होना, फिर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनका नबीना होना, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की मुआफिक पेश आया। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम में हजरत अस्मा बिनत अबू बकर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम सफ़ीक में एक बड़ा खूनख्वार जालिम शख्स होगा और एक बड़ा झूठा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई भी सच्ची साबित हुई। सफ़ीक में एक मशहूर गोनरेज हिजाज बिन यूसुफ पैदा हुआ। उनकी खूनख्वारी बेमिसाल है। बाज़ किताबों में उसके जुल्म की दास्तान लिखी है कि हिजाज को जितना मज़ा खून नाहक करने में आता था, इतना किसी और चीज़ में नहीं आता था। अल्लाहु अकबर। चुनांचे तिरमिज़ी में हिशाम बिन हैबान से रवायत है कि हिजाज ने 1,20,000 इंसानों का खून नाहक किया। कौम सफ़ीक का दूसरा शख्स जिससे झूठा फरमाया गया वह मुख्तार सक़फ़ी है। ये बड़ा झूठा और फरेबी था। उसने इमाम मोहम्मद बिन हनफी की नियाबत का झूठा दावा किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के खून का बदले उनके कातिलों से लेने का ढंग रचा कर रियासत और शोहरत हासिल की और आखिर में पैगम्बरी का झूठा दावा भी कर बैठा। मशकात की रवायत से पता चलता है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेशगोई का मस्ताक हजरत अस्मा ने हिजाज को खुद हिजाज के मुँह पर कहा। मसनद अबू उला में हजरत अबू अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का निज़ाम इस्लामी बिल्कुल ठीक रहेगा। सबसे पहले उस निज़ाम में नबी अमी का एक सख्त खलल पैदा करेगा। उस शख्स का नाम यजीद होगा। ये पेशगोई भी सच्ची साबित हुई। इस्लाम का निज़ाम में यजीद के सबब से फितना पैदा हुआ कि ऐसा फासिक शराबी मुसलमानों का बादशाह बना। उसके लश्कर ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया और मदीना पर उस लश्कर ने चढ़ाई की और काबा का मुहासरा करके उस कदर पत्थर मारे कि काबा की छत को सख्त सदमा पहुंचा, जो लकड़ी की बनी हुई थी। यही नहीं बल्कि रुई में तेजाब लपेट कर उसमें आग लगाकर मंजनेक के जरिए काबा में आग फेंकी, जिसमें काबा का पर्दा और दीवारें सब जल गए। उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई यजीद पर सादिक आई। अल्लाहु अकबर। उस हदीस में अगरचे कुछ कमजोरी और अबुल उला की सिंद ज़ईफ है, लेकिन मसनद रूमानी में अबू दाऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उसी मजमून की रवायत है। उस रवायत के अलावा और बहुत सी दूसरी हदीसों में मसनद अबू उला की रवायत को तक़वीत
पहुँचती है। चुनांचे रवायत है कि हजरत अबू हरिया रजी अल्लाह अन्हा दुआ मांगते थे, ऐ खुदा 67 की इब्तदाई से और कम उम्र वालों की हुकूमत से पनाह मांगता। अल्लाह अकबर। और यजीद की बादशाही 60 में हुई और हजरत अबू हरिया रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल 49 में हो गया था। मालूम हुआ कि अबू हरिया रजी अल्लाह अन्हा को भी हदीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक यजीद की बसाहत और उसकी खराबियों का इल्म था। ये कि दूसरी रवायत अबू दाऊद में हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हा से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम फितना बर्पा करने वालों का नाम माए वल्देत बयान फरमाया जो क़यामत तक होंगे। चुनांचे उस रवायत के मुताबिक यजीद जैसे फितना अंगेज का नाम भी जरूर बताया होगा, जैसे कि ऊपर वाली रवायत में मौजूद है। अल्लाह अकबर। हाकिम, बहकी और अबू नईम ने रवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हा बिन समाम रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तईसु हमीदन व तक़तुलु शहीदा। ऐ साबित, तुम जिंदा रहोगे काबिल तारीफ जिंदगी के साथ और तुम मारे जाओगे तो शहीद होंगे। ये पेशगोई बिल्कुल सच्ची साबित हुई। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत में मुसलिमा केज़ाब से यमामा के मकाम पर जो लड़ाई हुई थी उसमें हजरत साबित शहीद होकर बुलंद दर्जा को पहुँचे। अबू दाऊद में हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको मुखातिब करके फरमाया, मदीना में एक मर्तबा इतनी बड़ी खून रेजी होगी कि उसके काले पत्थरों पर खून जम जाएगा। अल्लाह अकबर। और खून की कसरत से नजर न आएगा। ये पेशगोई भी सच्ची हुई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद जब मदीने के अक्सर सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हा इकराम ने यजीद की इताअत से उसकी बदकिरदारियों की वजह से मुंह मोड़ लिया तो यजीद ने मशरफ बिन उकबा को सौंप सलार बनाकर मदीना पर एक लश्कर खून खवार भेजा। चुनांचे मकाम हरा पर के जहाँ काले पत्थर है सख्त जंग हुई। उसमें सैकड़ों सहाबी रजी अल्लाह अन्हा और उनकी औलाद शहीद हुए और हर्रा के काले पत्थर खून से ढक गए। अल्लाह अकबर।